Namaskar everyone. So now we will continue our exercise number 12.3. ठीक है, exercise 12.3. Question number 1. Find the area of square whose perimeter is 40 centimeter. So we will find out the area. Question 1. Perimeter is given. What is the perimeter? Perimeter is equal to 40 centimeter. ठीक है, we will find out area. How? कैसे? Perimeter of square is equal to 4 into side. First we find out side. Side is equal to perimeter divided by 4. Then perimeter, what is the perimeter? 40 divided by 4 is equal to 10 centimeter. We'll find out the side, then we will use for area. Area of square is equal to side into side. Area of square is equal to side into side. 10 into 10 is equal to 100 centimeter square. What is the answer? 100 centimeter square. First we will find out the side of the square and then we will find out the area. Now question 2 of this exercise, question 2 is that find the length of the rectangle question 2. Find the length of the rectangle whose area is given. Area is equal to 440 centimeter square. ठीक है, एरिया गिवन है. ब्रेथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. फाइंड आउट करना है हमें लेंथ. सो लेंथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L into B, length into breadth. Length into breadth. अब आपके पास में गिवन क्या है? फाइंड आउट करना है लेंथ. तो लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रेडथ. व्हाट इज द एरिया? 440 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द ब्रेडथ? 20. एरिया है आपके पास 440 और ब्रेथ है आपके पास 20. सो वी विल डिवाइड दिस. 2 1 जा टू 22. तो आंसर क्या हो गया आपका? 22 सेंटीमीटर. व्हाट इज द आंसर? लेंथ इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर. हमने पहले फाइंड आउट किया उसका लेंथ का फॉर्मूला है एरिया अपॉन ब्रेथ. ठीक है. Yes, question number 3 is that question number 3, a door of length, जो आपके पास में आपके घर में दरवाजा होता है, एक उसका लेंथ है 2 मीटर एंड 1 मीटर इज फिटेड इन अ वॉल. एक वॉल में एक डोर फिट है. ठीक है. द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर. जो वॉल की लेंथ है 4.5 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 3.6 मीटर और ये एक डोर इसमें फिट है. तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल if the rate of whitewashing the wall is rupees 40 per square meter. It means that first we find the area of this and find the area of this and then subtract the answer of this answer from this answer and then multiply by 40. ठीक है. PQRS. Then area of rectangle PQRS is equal to PQ into QR. What is PQ? What is PQ? 2. 2 into 1, 2 meter square. Area of rectangle ABCD is equal to AB into BC. AB into BC. What is AB? 4.5. What is BC? 3.6. 4.5 into 3.6. Multiply these two numbers. What is our answer? 16.20 meter per meter square.
ओके, इसका एरिया हो गया 16.20, ये एरिया है 2 मीटर। अब हम उसे माइनस करेंगे, देयरफॉर for whitewashing the wall, then required area is equal to 16.20 minus 2 is equal to 14.20 meter square. ठीक है, जो रिक्वायर्ड एरिया फॉर व्हाइट वॉशिंग द वॉल, आंसर क्या है आपका 14.20 मीटर स्क्वायर. देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग? Cost of whitewashing is equal to, therefore cost of white washing the wall is equal to rupees how much? 40 into 14.20, 0 0 4 2s are 8, 4 4s are 16, 4 1s are 4, 5. So answer will be rupees 568. Rupees 568. Okay. Now question number 4 and 5 are general questions. We will continue question number 6. A rectangular lawn is 15 meter long and 9 meter wide. It means that this is the rectangular lawn. ठीक है, ये क्या है? Rectangular lawn. This one. 15 meter length and 9 meter wide. Then it has a 1.5 meter wide path all round it outside. जो चारों तरफ से इसका है 1.5 मीटर पाथ. इसका मतलब आपकी लेंथ चारों तरफ से, ये जो रेक्टेंगल लॉन है इसको चारों तरफ से बाउंड्री कवर्ड है और उसका डिस्टेंस क्या है 1.5 मीटर चौड़ा जो है वो आपके तरफ से पूरे चारों तरफ से इसके बाउंड्री बनी. तो व्हाट इज द एरिया? AB is equal to, what is the answer? 15 plus 1.5, ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे इसमें, is equal to 5 5 10. ठीक है, 1 कैरी, 5 plus 1 6, 6 plus 1 7, 7 plus 1 18 मीटर. अब इसकी कैसे लेंथ है? 9, ये वाली लेंथ 1.5 और 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, कैसे? ये 9 हो गया और ये 1.5, ये 1.5, ये टोटल होगी लेंथ. अब ये हो गया 15 प्लस 1.5 1.5. ठीक है, तो आंसर हो गया 3 प्लस 9 12 मीटर. अब ये लेंथ होगी फाइंड आउट. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है. ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ ABCD and then find out the area of PQRS, then minus. ठीक है, so area of rectangle ABCD is equal to AB into BC. AB into BC. AB कैसे फाइंड आउट किया हमने? AB is equal to 15 plus 1.5 plus 1.5 is equal to 18 meter. And then BC is equal to 9 plus 1.5 plus 1.5 is equal to 12 मीटर. ठीक है, अब आंसर क्या हो गया आपका? AB 18 into 12. 12 8s are 96. 9 is carry. 12 1s are 12. 12 plus 9 260 meter square. ठीक है, 12 1s are 12. 12 plus 9 21. Then area of rectangle PQRS is equal to PQ into RS is equal to, what is PQ? 15 into 9. What is the answer? 135 meter square. ठीक है, 135 मीटर स्क्वायर. इसका एरिया हो गया 135 मीटर स्क्वायर और ये पूरा कंप्लीट इसका एरिया हो गया 216. अब आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ पाथ. देयरफॉर एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू 216 minus 135. What is the answer? 81 meter square. What is the answer?
81 मीटर स्क्वायर। हमने क्या किया, पहले एरिया फाइंड आउट किया दोनों का, उसके बाद में उस एरिया को माइनस कर दिए। नाउ क्वेश्चन 7 इज दैट, क्वेश्चन 7 में ये आपको गिवन है ये शेडेड पार्ट, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है शेडेड पार्ट का भी एरिया और अनशेडेड पार्ट का। इसके पहले भी हमने फाइंड आउट किए, तो ये ले लिए हमने ABCD, ये आपका PQRS, राइट। एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू AB इंटू AD और BC, AB इंटू BC। What is AB? AB 22. What is BC? BC है 14. आंसर क्या हो गया? 14 2 ज़ा 28, 14 2 ज़ा 28 प्लस 2 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास में एरिया फाइंड आउट हो गया। अब इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ PQRS, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। लेंथ ऑफ ब्रेड रेक्टेंगल में गिवन होती है। अब हमें नहीं मालूम इसका एरिया क्या है, बट ये इनसाइड है, ठीक है, बाहर तो है। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका एरिया? PQ इज इक्वल टू 22 माइनस, यहाँ पर जब बाहर का निकालते हैं तो दोनों भी प्लस होता है, इनसाइड का फाइंड आउट करेंगे तो माइनस होंगे, ठीक है। 22 माइनस, अब ये वाली फाइंड आउट करना है हमें, तो ये 4 और 4, ठीक है। अब ये फाइंड आउट करेंगे तो ये -2 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + 4, 2 टाइम्स माइनस करेंगे, 22 माइनस 8, 12 माइनस 8 4, 14 मीटर, ठीक है। अब BC नहीं, हाँ PQ हो गया। अब QR ये हो गया आपका 14 मीटर। QR इज इक्वल टू, ये पूरी टोटल है 14, उसमें से दिस वन 2 और 2, 2 + 2, 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। यहाँ पर जब इनसाइड की लेंथ ऑफ ब्रेड फाइंड आउट करना है तो हमें माइनस करना होता है 2 टाइम्स, और जब आउटसाइड की ब्रेड हमने फाइंड आउट किए थे तो हमें प्लस करना होता है, ठीक है, 10 मीटर। देन एरिया ऑफ इज इक्वल टू PQ इंटू QR। व्हाट इज PQ? 14, व्हाट इज QR? 10, 140 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द अनशेडेड पार्ट एरिया। ये क्या हो गया आपका? अनशेडेड पार्ट एरिया। अब जो शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करेंगे, शेडेड पार्ट एरिया, एरिया शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, तो इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे? 308 माइनस 140, व्हाट इज द आंसर? 8, 10 माइनस 4 6, 168 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया? फर्स्ट वी फाइंड आउट दिस एरिया, फाइंड आउट दिस एरिया, एंड देन दिस इज अनशेडेड पार्ट, और शेडेड पार्ट के लिए बिगर में से स्मॉल को माइनस कर दी। सेम क्वेश्चन नंबर 7 का भी है। सो वी विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is that a path 5 meter wide runs around the inside of a square park, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में स्क्वायर पार्क है, रेक्टेंगल नहीं है। अब इसके अंदर में पाथ रन कर रहा है, क्या कह रहा है इसमें? इनसाइड ऑफ 5 मीटर, तो ये भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये 5 मीटर का, ये भी 5 मीटर, 5 मीटर एंड 5 मीटर, ठीक है। अब स्क्वायर ABCD साइड इंटू साइड, स्क्वायर PQRS साइड इंटू साइड, एंड व्हाट इज द साइड? 100 मीटर। दिस इज 100 मीटर, 100 मीटर, तो ये क्या हो गया? 100 माइनस 5 + 5 90, 100 माइनस 5 + 5 90, ठीक है। PQ इज इक्वल टू 100 माइनस 5 + 5 इज इक्वल टू 90 मीटर। Then all sides are equal in square. Then find out the first area of square ABCD. Area of square ABCD is equal to side into side. Side into side. ठीक है। साइड कितनी है? 100 into 100 is equal to 10,000 meter square. ठीक है। सेकेंड, एरिया ऑफ साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS is equal to side into side. What is the side? 90 into 90, 9 9s are 81, 100 मीटर स्क्वायर। हमें फाइंड आउट क्या करना है?
फाइंड द एरिया ऑफ पाथ. ओके, एरिया ऑफ पाथ के लिए हम क्या करेंगे, माइनस. देयरफॉर एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू 10,000 1 2 3 4 minus 8100. 0 0 10 minus 1 9 9 minus 1900 मीटर स्क्वायर. बस कुछ नहीं करना है, पहले आपको फाइंड आउट करना है दोनों का एरिया और उसके बाद में उसमें से माइनस कर देना है. सेम क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. a big hall 44, हाँ ये रेक्टेंगल है, ठीक है. A big hall 44 meter long and 35 meter broad is surrounded by a veranda 5 meter wide. ठीक है, तो पहले तो हमारे पास में रेक्टेंगुलर हॉल है, इसकी लेंथ है 35 मीटर, नहीं 44 मीटर, और ब्रॉड है ये 35 मीटर. इसके चारों तरफ में सराउंडेड बाय वरांडा 5 मीटर वाइड. 5 मीटर वाइड चारों तरफ से इसकी बाउंड्री बनी है, ठीक है. देन इट इज द रेक्टेंगल ABCD. It is the rectangle PQRS, but we don't know what is the length and breadth of rectangle PQRS. So no problem. This is 44. Okay, plus this is 5 plus 5 54 मीटर. ठीक है, अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, 35 plus 5 plus 5 45 मीटर. Right. So PQ is equal to 44 plus 5 plus 5 54 meter and QR is equal to 35 plus 5 plus 5 45 meter. ठीक है, अब फाइंड आउट करें एरिया. एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD is equal to length into breadth. Length is AB and breadth is BC. What is the length? 44 and what is the breadth? 35. What is the answer? Answer will be 44 into 35 is equal to 1540 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS. एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS. रेक्टेंगल PQRS is equal to PQ into RS, length into breadth. What is the length? 54 and what is the breadth? 45. What is the answer? Answer will be 2430 meter square. ठीक है, then we will find out the area of path. Therefore, area of path is equal to 2430 minus 1540. What is the answer? 13 minus 4 9 and this one is 3. 13 minus 5 890 meter square. बस ये क्वेश्चन का आंसर है. First we find out the area of this rectangle and area of this and then subtract it, we will find out the answer. Last question of this exercise, question number 10. Question number 10. A square plot of side 40 meter. ठीक है, स्क्वायर प्लॉट है 40 मीटर. 40 meter and 40 meter. All sides are equal. A path of uniform width 4 meter runs round it inside the plot. Inside the plot 4 meter. यहाँ भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर. ठीक है, अब 4 मीटर. अब आपके पास ये 40 है तो ये क्या हो गया, 40 माइनस 4 प्लस 4, 40 माइनस 8 32 मीटर. ये भी 32 मीटर. ठीक है, आंसर भी आपका ये स्क्वायर हो गया. ये हो गया ABCD and this one PQRS. Okay, then we will find out find the cost of covering the path with bricks ₹22 per square meter and also the cost of putting grass on the remaining portion of the plot.
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले हमें ये पता करना है कि अभी यहाँ पर ब्रिक्स करेंगे तो उसका कॉस्ट फाइंड आउट करना है, और रिमेनिंग पोर्शन में जो माइनस करेंगे तो उसका भी एक कॉस्ट निकालना है, और जो आपको करना है कि कॉस्ट ऑफ पाथ में ये जो पाथ का एरिया निकालेंगे इसमें ब्रिक्स का जो कॉस्ट है वो भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो फर्स्ट वी फाइंड आउट PQ is equal to 40 minus 4 plus 4 is equal to 32 meter. All sides are equal because this is the square. ठीक है, so area of path is equal to area of square ABCD minus area of square PQRS. ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD ये हो गया आपका 40 इंटू 40 और दूसरा है 32 इंटू 32। ओके, 40 इंटू 40 1600 माइनस 1024 इज इक्वल टू 10 minus 4 6, 9 minus 2 7, 576 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस्ट निकालना है आपको ₹2 के अकॉर्डिंग, ब्रिक्स पुट करना है। क्या है ये क्वेश्चन? द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द पाथ, द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द पाथ with bricks ₹2 per square meter is equal to 576 into 2 is equal to 2 6 are 12, 2 7 are 14 plus 1 15, 2 5 are 10, 1152. What is the answer? 1152. अब आपको फाइंड आउट करना है क्या? Also the cost of putting grass on the remaining portion of the plot at the rate. अब हमने तो यहाँ पर ब्रिक्स का जो है ये एरिया फाइंड आउट कर लिया, अब यही एरिया बच रहा है, तो ये एरिया का आंसर क्या था? 1024। ठीक है, इस एरिया का आंसर क्या है? 1024। तो यहाँ पर हमें ग्रास प्लांट करनी है, तो ग्रास का क्या है? द कॉस्ट ऑफ पुटिंग, सेकेंड क्या है? द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ग्रास on the remaining portion is equal to 1024 multiplied by what is the cost? 1.25. So answer will be ₹1280. Okay, so we will complete this exercise up to question number 10. Now we will continue next exercise in next lecture, exercise 12.4. Okay, 12.4 we will continue in next lecture. This exercise will be completed up to question number 10. Now we will continue new exercise in new lecture on a new day. Okay, fine. Thank you.